update ahead of the Bihar elections. Remember, a major political twist that has unfolded in Bihar. Former MLA and JDU candidate Anand Singh has been arrested by the Patna police in connection with the murder of Dular Chand Yadav, who's a Jan Swaraj Party supporter. Moments ago, the JDU candidate Anand Singh was produced in court. His aides are also in the police net. Now, this entire crackdown, remember, relates to the murder of Dular Chand Yadav, who was shot dead on the 27th of October during a clash between rival political groups in Mokama. Now, in the latest update, the JDU candidate Anand Singh has now been sent to a 14-day judicial custody. That's the update coming in at the moment. Let me go across to Saket, my colleague joining us at the moment. साकेत, क्या कुछ डिटेल्स हैं? क्या हुआ कोर्ट में? अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है आनंद सिंह को। देखिए, कल रात गिरफ्तारी हुई थी आनंद सिंह की और उसके बाद पटना में एसएसपी ऑफिस के पास ही एक सेल में उनको रखा गया था कल रात से। अभी थोड़ी देर पहले उनको कोर्ट ले जाया गया है, जहां पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है उनको, और अब उनको सीधे बेऊर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और वहां जो पुलिस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, डीजीपी ने खुद कहा था कि चूंकि अभी चुनाव है तो प्रायोरिटी चुनाव कराने की है, और चुनाव के बाद फिर से एक बार पुलिस हो सकता है कि अनंत सिंह को रिमांड पर ले और पूछताछ करे, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच पुलिस की चल रही है और पूछताछ अहम माना जा रहा है कि आखिर जो घटना घटी थी उस जगह उस वक्त क्या कुछ हुआ था। तो इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। तो फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत अनंत सिंह को मिली है। अब देखना होगा अनंत सिंह को आगे पुलिस कब कोर्ट में प्रोड्यूस करती है और किस तरह से न्यायिक हिरासत के बाद जो पूछताछ के लिए उसको पुलिस कोर्ट में जाकर अपील करती है। जी साकेत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग साकेत getting us more updates on how the investigation is proceeding further. Remember, JDU candidate Anand Singh now has been sent to a 14-day judicial custody. But the Mokama murder in crackdown has become a turning point in these elections. While the RJD and the Congress are using the case to slam the NDA with barbs of Maha Jangal Raj, the NDA has hit back, pointing at swift action and reminding of how criminals were shielded under RJD's Jangal Raj era. Take a look at these latest political reactions. लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। Whatever that has happened in Mokama is very unfortunate, and I personally believe that even one incident like this takes place, so definitely it is a matter of concern. Somebody who has just seen my current chief minister being the chief minister of the state will not understand what that era was. And this is why, you know, we get all the way more concerned, and we want to amplify what used to happen in 90s. The whole RJD, the whole regime, the whole setup provide shelter to the culprits. They promote corruption. But here in this case, Anand Singh, is a candidate of the JDU, CM Nitish Kumar's party, and he's one of the accused, arrested as well now. Well, I think I also came to know about this because last night he was arrested. It is just for sheer interrogation, or there's something against it. We are yet to find that. But then, as I said, that nobody will be spared. Anybody who's guilty will be punished. इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खाना पूर्ति की गई है गिरफ्तारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है पूरा बिहार। चाहे सिवान में एसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में हो, मोकामा में हो, ये गुंडा राज है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जंगल राज का कैसेट, जो जनता का राज, गरीबों का राज सब कहते हैं, अब ये गुंडा राज पर बोलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज रोड शो था, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए खाना पूर्ति की गई है। आखिर इतना विलंब क्यों हुआ? एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कार्रवाई हुई और ताजा जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट करती है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। As Jungle Raj becomes a recurring theme in political rallies, remember Union Home Minister Amit Shah unleashed a no-holds-barred attack on the family of RJD Supremo Lalu Prasad Yadav, alleging that if his son is voted to power, Bihar will see the creation of 3 portfolios of murder, kidnapping and extortion. अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। Meanwhile, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has made it clear the EC has a zero-tolerance policy against violence. He's also assured that the people of Bihar can cast their votes without fear. चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। Now, as Anand Singh comes under fire for his alleged involvement in the killing of Dulal Chand Yadav, his lawyer has said that his client is being targeted to influence the elections. तो इसलिए वोट को प्रभावित करने के लिए मोटिव उन लोगों का बस वही है और कोई मनसा नहीं है। दुलार चंद जी का मौत जैसे भी हुआ बहुत दुखद हुआ, हम लोगों को भी संवेदना है उनके प्रति, लेकिन बेवजह ही इनको टारगेट किया गया जो मुद्दा है चुनाव से संबंधित। इसके पीछे विरोधी समूचे लगा हुआ है, सब जानता है, सूरज सिंह का ही साड़ा है। आगे कार्रवाई तो अब पुलिस पदाधिकारी लोग हैं वो करेंगे, उनको गिरफ्तारी किए हैं, उसके बाद इनको जज साहब के यहाँ पेश किया जाएगा, रिमांड होंगे। Now, amid this political showdown, the deceased Dulal Chand Yadav's family has registered a strong demand for justice. Yadav's grandson has said that his family will not hold the essential Hindu ritual of Brahman Bhoj until and unless Yadav's killers are convicted. हम सब यही मांग कर रहे हैं कि जितने लोग हैं, जितने लोग इसमें हैं, 5 लोग हम सब दिए हैं, 5 लोग का हम सबको गिरफ्तारी चाहिए। जब तक नहीं होगा गिरफ्तारी, जब तक नहीं होगा हमको तो सजा नहीं मिलेगी जब तक हम ये ब्रह्मभोज की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे। ब्रह्मभोज हम सब रोक रहे हैं। हम सब ब्रह्मभोज पूरे समाज के तत्वाधान में पता चला है, सबसे बात की है, सब बोले हैं कि ब्रह्मभोज आप रोक दीजिए। ब्रह्मभोज हम नहीं कर रहे हैं। मेरे दादाजी को मारा गया, हम भोज नहीं करवाएंगे अभी जब तक मेरे दादाजी के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, जब तक हम भोज नहीं करवाएंगे। All right, let me go across to my colleague Saket, who's getting us more on this. Saket, political war of words शुरू हो गया है। आनंद सिंह और उनकी जो फैमिली है वो कह रहे हैं, उनके लॉयर भी कह रहे हैं कि उनको टारगेट बनाया जा रहा है।
दुलार चंद यादव के परिवार कह रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और हम तब तक रिचुअल नहीं करेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाएगा। उधर एक पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स ऑपोजिशन और एनडीए के बीच में चल गया है इलेक्शन से पहले। क्या कुछ वहां पर घमासान हो रहा है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक रंग इस पूरे मामले ने तो जरूर लिया है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी कल हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष का आरोप है वो बैकफुट पर दिखेगा, क्योंकि बड़ी कार्रवाई की है सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने, जिस तरह से अनंत सिंह को कल गिरफ्तार किया गया है। जहां तक बात परिवार के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का है, तो पुलिस तमाम मुद्दों पर आज डीजीपी से लेकर पुलिस के तमाम पदाधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप कानून के तहत नहीं किया जाएगा और ना ही किसी दबाव में ये फैसला लिया जाएगा, ये आश्वस्त कर रहे हैं पुलिस के लोग। लेकिन देखना होगा, क्योंकि अनंत सिंह की आज कोर्ट में पेशी हुई और इनको 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, 14 दिन की हिरासत में भी भेजा गया है। लेकिन पुलिस ने ये साफ किया है कि आगे जब चूंकि अभी प्रायोरिटी चुनाव कराना है, तो चुनाव के बाद रिमांड पर भी पुलिस लेगी और पूछताछ करेगी। तो एक एक बिंदु पर पुलिस काम कर रही है। जब तक गिरफ्तारी भी हुई है और चूंकि इलेक्शन का पूरा माहौल है, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट सरकार जरूर लेगी कि चाहे वो कोई भी अपना ही कैंडिडेट क्यों ना हो, उन पर आरोप लगा तो कार्रवाई सरकार ने की, ये कहना जरूर चाहेगी जो सत्ताधारी दल के लोग हैं। तो देखना होगा इस पर क्या कुछ जांच होता है और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है। जी साकेत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Viewers will keep getting you the latest from this entire political battle playing out in Bihar, but